Narration, picture, perception, and description test. This is often a matter of discussion how to practice for narration and how to make it impressive. When it comes to narrate a story, you are given complete 1 minute time, and within 1 minute, you have to narrate your story. And this is very smooth because nobody is going to disturb you. Generally, in group discussion, you have students who are from different background and they sometimes create disturbance also. Sometimes fish market is there in the group discussion. But when it comes to narrate a story, you are the individual performer. You have opportunity to make your impression better, and the style of narration makes you presentable in your PPT performance. So students, this is Aditya Dubey. I'm going to discuss some important tips that can make your narration very effective, and of course it can give you a good score in your PPNDT and you can achieve success in SSB interview. So the very first point that I would like to convince you that makes the man perfect. So you have to practice n number of times, and you have to see your narration. You have to be satisfied with your own narration style because self-satisfaction plays a very important role. One should be satisfied with one's performance. So keep practicing for narration until you are satisfied with your own performance. This will definitely add on the confidence level in you, and that is actually required when it comes to give a good performance in PPNDT. So your own certification is the key of success in your self-confidence. Students generally discuss how to bring self-confidence, how to bring that level of transcendent level in our delivery. So that is just like your own assessment should be there. You should have your own observation, and once you are happy with your own narration style, you will definitely have a better performance. Now students, point number 2, passionate delivery. Deliver with passion, right? Your voice should not be slow. Your voice must be louder. I'm not asking you to speak very loud, but at least you must be audible, because audibility factor is the greatest issue. Sometimes students speaks very slowly, that makes you a little nervous in the group discussion. Slow voice, nervousness, and loud voice shows the confidence level. Definitely check your audibility level as per the number of students available. You should be clear to every student, and you should be loud enough to make your points clear. When it comes to deliver some content passionately, of course, your self-satisfaction and your curiosity to explain others, that matters a lot. You should have ability to convince others. You should have ability to explain your complete story, and of course, while explaining, that level of happiness should be there on your face. You should not just feel the part of system and the kind of boring platform you have got, and you just have to convey the story and you are with pressure. That should not be there. You should be cool and calm while explaining your story. Your purpose is to explain it to others. Your purpose is not to get confused or not to just feel little boring while explaining. We can take several examples in our practical life that when it comes to explain to some group, the person who's going to discuss must be very confident. So the same level of qualities are expected in the narration also. When a student is doing narration, he must be confident to explain it to others. And students, point number 3 comes your eye contact. That really plays a very important role. You are in a semicircle group, so you are supposed to make eye contact with all the members, left hand side, right hand side. You should at least connect with your audience. Connecting with the audience is not due to the rules of GT. Connecting with the audience is actually required for your own benefit. Your benefit is you will receive active attention when you will connect with the audience. So connect with the audience, receive an active attention, and that will definitely make you a confident speaker. Now the point number 4, that is comfort level with the language. You must be comfortable with your language, right? In case you have some issues in English language, so definitely आप हिंदी लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, आप लैंग्वेज को स्विच कर सकते हैं, लेकिन जो बोलने का ढंग है, जो डिलीवरी का सिस्टम है,
वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए अपनी बात को कहने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, एंड वो खुशी आपके चेहरे पर होनी चाहिए कि आप अपनी बात को दूसरों को कन्वे करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लैंग्वेज को लेकर इश्यूज बहुत सारे रहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे इंग्लिश में ही कन्वे करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये समझना है कि नेशनल लेवल का इंटरव्यू है, नेशनल लेवल से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो लैंग्वेज का प्रेफरेंस होगा वो तो इंग्लिश का ही होगा। तो अपनी इंग्लिश को एनरिच करें। इंग्लिश को एनरिच करने के लिए आप मेंटोर्स की हेल्प ले सकते हैं। We have got exclusive spoken English program that can help you to enrich your English language, क्योंकि language is an interface। अगर इंटरफेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डेफिनेटली जो डिलीवरी है मैसेजेस की वो इश्यूज में रहेगी और हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के, अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी नहीं है। तो लैंग्वेज पे कमांड बिल्कुल अच्छी करिए और इसके लिए हमारी हेल्प भी लीजिए। हम डेफिनेटली आपको सही गाइडेंस देंगे और कम से कम समय में आप अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। जिस मैनर में आपका बैठना होता है, आपको you are supposed to sit straight, you are supposed to sit in a manner that you will receive an active attention। अब active attention अगर आपको receive करना है तो आपको भी actively बैठना है। आपकी personality properly visible होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स ने ये भी बताया है कि they are hidden due to some other students, तो ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस बिल्कुल भी मत करिए। जब नरेशन की बात आती है तो डेफिनेटली आपको विजिबल पर्सनालिटी के साथ आपको रहना चाहिए। अगर आपको कोई हाइड करने की कोशिश कर रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के कैंडिडेट्स, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लेट मी आल्सो बी विजिबल। एंड एसएसएस की ब्रीफिंग बहुत ध्यान से सुनिए। एसएसआर में अगर आपको ब्रीफ किया है कि यू विल नॉट लुक एट देम एंड यू विल एक्सप्लेन टू योर ग्रुप मेंबर्स, सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्रुप मेंबर्स में ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बार बार अगर आप एसएसएस की तरफ देखेंगे तो दैट विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, इट कैन इरिटेट देम आल्सो एंड इट कैन डिडक्ट योर मार्क्स। सो बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि मैंने आई कांटेक्ट के बारे में बताया कि सभी स्टूडेंट्स को आपको कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब सभी स्टूडेंट्स को कनेक्ट करेंगे, हेल्दी ऑडियंस होगी, तो स्पीकर को बोलने का जो एक जज्बा है, जो एक इनर स्ट्रेंथ है, वो महसूस होती है। तो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा इसमें हैफर्ड मत होइए। कई बार स्टूडेंट्स नरेशन के टाइम पे आने पर बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग की प्रॉब्लम महसूस करते हैं। दे स्टार्ट ब्रीदिंग वेरी हाई एंड दे फील दिस इज रियली गोना बी वेरी वेरी डेंजरस राउंड और वेरी काइंड ऑफ स्पेशल राउंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि n नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेशंस करिए। आपके रूटीन में आपका नरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। Here at Centurion Defense Academy, this is what the key factor. We make students practice for narration till we see the changes, the required changes that we have already mentioned. That we do not see, we keep making them practice, and then finally that outcome comes, and this is how students get success in their SSB interviews. तो प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक आपकी ये नॉर्मल रूटीन में ना आ जाए, हैबिट में ना आ जाए नरेशन करना। और इस ऑडियंस को देख करके आपको और उत्साहित महसूस करना चाहिए, ना कि आप डिस्करेज्ड और डिसअपॉइंटेड फील हो, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एसएसएस बैठे हुए हैं, क्या होगा अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या होगा अगर मेरा नरेशन सही नहीं जाएगा। आपको अपना जो असाइनमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए। यू आर हेयर फॉर रिक्रूटमेंट, यू आर हेयर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। एंड स्टूडेंट्स, आपका ड्रेसिंग सेंस ऑफ कोर्स बहुत मायने है ड्रेसिंग सेंस के। आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आपका एक फॉर्मल ड्रेस कोड है आपको उसे फॉलो करना चाहिए। उस फॉर्मल ड्रेस कोड में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस, जैसे जीन्स का पहनना, यहाँ पे बड़े बड़े कड़े पहनना या अननेसेसरली रिंग्स पहनना, दैट इज एक्चुअली लुक ऑड, एंड योर हेयर स्टाइल
अगर आपने बहुत लंबे हेयर कर रखे हैं या आपका चश्मा बड़ा ही अजीब स्टाइल का है, तो ये जो हमारी इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, इनका हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बेल्ट का जो बकल है वो एक बहुत ही विचित्र कैटेगरी का आपने लगा रखा, बहुत बड़ा। तो ये सब मायने भी मैटर, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। ये आपके लेवल ऑफ इंटरेस्ट को डिस्प्ले करती हैं, आपके जो आपका सराउंडिंग्स है उसको डिस्क्राइब करती हैं। तो आपके नेल्स, बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है, जिसमें आपका जो डिसेंट लुक रिक्वायर्ड है, वो भी आपको बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। और डिसेंट लुक में मुझे बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि व्हाट इज़ डिसेंसी एंड व्हाट इज़ फॉर्मल ड्रेसअप। फॉर्मल ड्रेसअप के लिए वी हैव शोन सम ऑफ द पिक्चर्स आल्सो, यू कैन फॉलो दैट। आपको प्रॉपर शर्ट, टाई, बेल्ट, पॉलिश्ड शूज आपको प्रॉपर तरीके से पहनना है। ट्राउजर आपका आयरन होना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है आपका बैठने का ढंग, जो कि मैंने बताया कि आपको अलर्ट लेवल पे बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लीन हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। आपने हाथ अपने घुटनों पे रखे हुए हैं। अगर आपने घुटनों पे हाथ रखे हुए हैं तो ये शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन जितना आप अच्छा बनाएंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि ये टिप्स आपको बहुत पसंद आई होंगी और आप इन्हें ज़रूर फॉलो करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने करियर में अच्छे से तैयारी करें। एंड बेस्ट विशेस आर देयर विद यू। थैंक यू। जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।